Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday you have studied about the gas pressure and the liquid pressure. In that section, you have studied about the gas and liquids are called as the fluid, and the fluid exert the equal pressure in all direction. जो लिक्विड्स है या फ्लूइड्स है वो इक्वल प्रेशर और डायरेक्शंस में अप्लाई करते हैं। ये हमने कल क्या है लर्न किया। एंड देन वी हैव सीन दैट द लिक्विड हैव द हाईएस्ट प्रेशर एट द बॉटम in which it is placed, and it have the lower pressure at the surface of that container. Now after that we have seen the buoyant force applied by the liquid. जो liquid है वो buoyant force apply करती है। Now we have to continue from the page number 19. Yes, here one activity is given, try this. So what we have to do here, we have to take a thin aluminium sheet and dip it into water in a bucket. We have to take a piece of thin aluminium sheet. Thin aluminium की sheet लेना है हम लोगों को। क्या लेना है? Thin. Thin means very बहुत ही पतला, और वो sheet किसकी बनी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम की। एंड डिप इट इनटू द वाटर इन बकेट, और उसको क्या करना है हम लोगों को? बकेट में डिप करना है। बकेट में वाटर फिल करके डिप करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो व्हाट विल हैपन? दैट थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम विल डिप इन द वाटर इन अ बकेट. नाउ शेप द सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट into the small boat and place it on the surface of water. If float, isn't it? So what will happen? It will float. Okay, earlier when we release that thin aluminium piece in water, that dip in the water, but when we give the shape of that same piece of aluminium to the shape of the small boat, and when we place it on the surface of water, it float on the water surface. Okay, so now there are some conditions to float on water or to dip in water. तो यहाँ पे some क्या है? Conditions है, some factors है, because of that the things float on the water or dip in the water. The object which have the density less than the density of water, they float on the water. And second, now aluminium have the density more than the water's density, even though it float. So here it float because of its particular shape. एक particular shape की वजह से वो float होता है. Okay, now yes, when we take the example of the कार्गो शिप्स, जो कार्गो शिप्स होते हैं, जो जहाज़ें होते हैं, जो माल ढोने वाली जहाज़ें होते हैं, उस जहाज़ों पे मेनी टन्स ऑफ द लोड, मेनी टन्स ऑफ द कंटेनर्स आर लोडेड. कई टन्स जो है कंटेनर के लोड वाले जो है उस पर लोड करते हैं. इवन दो दैट शिप डू नॉट सिंक, फिर भी वो शिप्स जो है वो क्या है? डीप नहीं होता, डूबता नहीं है. ऐसा क्यों? इवन दो दैट शिप इज मेड अप ऑफ द आयरन, आयरन से बना होता है और उस पर बहुत सारे क्या है? एंगल्स यूज होते हैं, बहुत ही हैवी वेट का होता है. इवन दो इट फ्लोट ऑन द वाटर, फिर भी वाटर के ऊपर वो क्या है? फ्लोट होता, सिंक होता नहीं है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली इट्स पर्टिकुलर शेप. उस शेप की वजह से वो सिंक नहीं होता है. बट व्हेन यू ड्रॉप ए आयरन नेल of very low mass, it sink in the water, but ship does not.
लेकिन जो शिप है वो नहीं डूबता। A iron nail sink in the water, but why does the massive steel ship float on it? एक छोटा सा आयरन का नेल, आयरन नेल मीन्स कीला, जो कीला होता है, ओके, जो दीवार में वॉल्स में हम क्या करते हैं, उसको हैमर करके अंदर इंसर्ट करते हैं, वो कीला या स्क्रू, वो जो है अगर हम वाटर में ड्रॉप करें तो इट इमीडिएटली सिंक इन द वाटर, बट द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट। लेकिन वही जो मैसिव, मैसिव मीन्स जायंट, बड़े साइज का जो स्टील मीन्स लोहे का बना हुआ जो शिप है, उस वाटर के ऊपर वो क्या होता है, फ्लोट होता है। When an object is deep in liquid, a buoyant force acts on it and hence it appears that weight of object is reduced. So when any object is kept on the water surface and it floats, then on that object buoyant force acted by the water, and it appears that the weight of that object become less as compared to the its original weight. क्या हो जाता है, पानी के अंदर उसका वेट कम हो जाता है, कम फील होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द बायोन, बायोन्स फोर्स की वजह से। इट बिकम ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर दैन द फ्रेश वाटर। हम लोगों को जो समुद्र का पानी है, जो सॉल्टी वाटर है, उसमें तैरना आसान होता है एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। This is because the density of the sea water is higher than the density of the fresh water. This is because the density of the sea water is higher than the density of the fresh water. क्योंकि ये जो डेंसिटी है सी वाटर की वो ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर के कंपेयर में। एंड बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट्स इन द सी वाटर, और जो सी वाटर में जो सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं उसकी वजह से। In this book you have seen that the lemon sink in the glass filled with the water, but it float when we stir in the 2 spoon of salt in the water. आपने ये ऑब्जर्व किया है, और नहीं ऑब्जर्व किया है तो यू कैन डू दिस। यू हैव टू टेक अ लेमन, ओके, एक लेमन लेना है, नींबू लेना है, एंड यू हैव टू फिल द ग्लास विथ वाटर, पानी से उसको फिल कर देना है। तो when you drop the lemon it will sink in the glass filled with water, ओके, तो क्या होगा, उस पानी के अंदर वो लेमन सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड द 2 स्पूनफुल ऑफ द सॉल्ट इन वाटर। अब उसी पानी में 2 चम्मच आपको नमक डालना है, सॉल्ट ऐड करना है, एंड यू हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली, and then again you have to repeat the same activity, means you have to drop the lemon in the water. So what happens that lemon does not sink in the water. So what happens exactly when we add the water, when we add the salt in water, the density of that water increases, डेंसिटी क्या हो जाता है उस वाटर की, इंक्रीज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज डेंसिटी दैट लेमन फ्लोट इन द वाटर। इन सॉल्टी वाटर बायोन फोर्स एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वाटर सॉल्टी हो जाता है आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, देन दैट बायोन फोर्स एक्सीड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस पर अप्लाई होने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज़्यादा बायोन फोर्स हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटर बायोन फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट लेमन स्टार्ट फ्लोटिंग। what is the अंडरस्टूड फ्रॉम these एग्जाम्पल्स, इससे क्या समझा गया इन एग्जाम्पल से। द बायोन फोर्स डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स, कि जो बायोन फोर्स है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है। द बायोन फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिपिंग ऑब्जेक्ट है, जो डूबने वाला ऑब्जेक्ट है, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला बायोन फोर्स ज़्यादा होगा। नाउ यस, बायोन फोर्स इज अप्लाइड बाय द एयर ऑल्सो। तो व्हेन एनी पर्सन जंप ड्यूरिंग द
is explosions of the aeroplanes or if any emergency, then what happens if that parachute doesn't open? So that person comes with very high speed, and because of that, that person may die. But when parachute opens, the wind force applied by the air increases, and because of that, that person slowly comes to the ground. तो that's why the life of that person is saved. तभी उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बचाई जा सकती है. Because when the person falls directly from height, then the bind force applied on that body of that person is very less, and when there is a parachute, the volume increases. Okay, the bind force also increases because that person is tied with that parachute. That parachute's volume is high, उसका जो size होगा वो ज़्यादा होगा, and because of increased volume, that person slowly comes to ground, and hence the life of that person is saved. So the bind force depend on the two things. First one is the volume of the object, जो volume है उसके ऊपर. Second, the density of liquid. If the density of liquid is more is the force of buoyancy. तो force of buoyancy भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. डू यू नो, क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, हाउ इज इट डिसाइडेड दैट इन ऑब्जेक्ट left in liquid will get sink in the liquid, will float on the surface or will float inside the liquid? हाउ इज इट डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर सरफेस पे लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर और विल फ्लोट इनसाइड द वाटर और इट विल यस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर. तीन चीजें, कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट हो रहा है, कि वाटर के अंदर फ्लोट हो रहा है, क्या सिंक हो रहा है. दिस डिपेंड्स ऑन विच थिंग्स, किस चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है. ओके, नाउ फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द बाउंड फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट. ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द बाउंड फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट. जो ऑब्जेक्ट है अगर उससे उसके वेट से अगर बाउंड फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. ओके, तो अब वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेट इज इक्वल्स टू एम जी. एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स 9.8. तो जो भी मास होगा दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 9.8, तो यू विल गेट द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो इफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द बाउंड फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट, अगर वेट से ज़्यादा है बाउंड फोर्स, देन इट विल फ्लोट. द ऑब्जेक्ट सिंक इफ द बाउंड फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट, अगर बाउंड फोर्स इज कम है उसके वेट से, देन दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक. ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, ऑब्जेक्ट लिक्विड सरफेस के अंदर फ्लोट होगा. द ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड इफ द बाउंड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, अगर बाउंड फोर्स और जो वेट है अगर दोनों इक्वल हो जाए, देन विच फोर्सेस आर अनबैलेंस इन द अबो केसेस. अब कौन से फोर्सेस अनबैलेंस होते इस केसेस में? तो जब if the object is larger bound force than the its weight, then it will float. Okay, so that time forces become unbalanced. Now आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज है उनके प्रिंसिपल को अभी हम लोगों को यहाँ पे लर्न करना है, बिकॉज ये बेस्ड ऑन दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैनी डिवाइसेस वर्क्स, बहुत सारी डिवाइसेस क्या करती है, उस पर काम करती है. Okay, now yes, one activity is given. Let's read it. Take a long rubber band and cut it at one point. अब क्या बोला है, एक लॉन्ग रबर बैंड लेना है एंड कट इट एट वन एंड. अब जैसे 3-4 इंच का लॉन्ग रबर बैंड है, ठीक है, फिर उसको क्या करना है, उसके
उसको कट कर लेना है सो दैट इट बिकम लॉन्ग। ओके, सर्कुलर शेप कन्वर्टेड इनटू द लीनियर फॉर्म, तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स व्हाई वी हैव टू कट इट। तो एक रबर बैंड लेना है, सर्कुलर रबर बैंड 3-4 इंच वाला, उसको कट करना है। ओके, एट वन ऑफ इट्स एंड ए क्लीन वॉश स्टोन और 50 ग्राम वेट एज शोन इन फिगर 3.11। अब क्या करना है, उसके एक एंड पर आपको 50 ग्राम वेट या तो एक अच्छे से क्लीन किया हुआ स्टोन टाई करना है। क्या करना है, टाई बांधना है। अब आपने रबर बैंड लिया, सपोज क्या है, ये बिग साइज का रबर बैंड है, यू हैव कट इट फ्रॉम हियर, कहीं से भी आपने कट किया। नाउ दिस विल बिकम यस लेंथ वाइज लाइक दिस। Now you have to take a 50 gram weight or a stone, okay, clean stone लेना है, and you have to tie that stone with this rubber band। ये जो रबर बैंड है उससे क्या कर लेना है आपको, उसको स्टोन को या 50 ग्राम का जो वेट है उसको टाई करना है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, Now hold the other end of the rubber band and make a mark there। अब क्या करना है आपको, Now hold the other end of the rubber band and make a mark there। अब आपको अपने हाथ में उस रबर बैंड का दूसरा एंड पकड़ कर उसको, उस जो वेट है उसको हैंग करना है, और आपको क्या करना, मार्क करना है। देखो यहाँ जैसे यहाँ पे सेम पोजीशन पे हैंड को लिया है दोनों केसेस में। ओके, अब कहाँ तक ये हैंग हो रहा है, कहाँ तक लटक रहा है, ये क्या है, वेट। तो हियर यू हैव टू मार्क इट। नाउ हियर इट इज एम्प्टी, ये पूरा का पूरा एम्प्टी है। यू आर हैंगिंग दिस इज इन द एयर, ये हवे में आप हैंग कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, ये जो जार है इस जार में विदाउट फिलिंग वाटर यू हैव टू हैंग एंड यू हैव टू मार्क हियर। Keep the same stone hanging in air and measure the length of the rubber band from the stone to mark made earlier। Now take water in the pot and hold the rubber band at such a height that the stone sink in it। Again measure the length of the rubber band up to mark what is observed। अब क्या करना है, सेम पॉट में वाटर फिल करना है और जिस हाइट पे आपने पहले होल्ड किया था सेम हाइट पे क्या करना है, उस रबर बैंड को होल्ड करके रखना है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो यू विल फाइंड दैट हियर देयर इज मोर स्ट्रेचिंग इन द रबर बैंड व्हेन इट इज हैंग्ड इन द empty container and here the height will be less। यहाँ पे height क्या होगा, less when it is deep in the water। This length is shorter than the earlier length while dipping in the stone in the water। जब हम लोग क्या करते हैं, स्टोन को वाटर में डिप कर देते हैं तो जो हैंग होने वाले उस स्टोन और क्या है रबर बैंड की जो डिस्टेंस है इट विल बी शॉर्टर एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन, पहले वन के कंपेयर में। दिस लेंथ इज शॉर्टर देन द अर्लियर लेंथ while dipping the stone in water। The length of stretch rubber gets slowly reduced and is minimum when it sinks completely। अब जो है जैसे जैसे हम लोग उस जो थ्रेड में उस रबर बैंड में टाई किया हुआ जो 50 ग्राम का वेट है या जो स्टोन है, जैसे जैसे हम लोग और क्लोज लाएंगे उस कंटेनर के, उसका जो ये लेंथ है दिस विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। वो क्या होते जाएगा, छोटा छोटा होते जाएगा। इट मीन्स जो बाइंड फोर्स है ये बॉटम की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ क्या है, कम है। इससे ये प्रूफ होता है। तो दिस लेंथ इज शॉर्टर देन द अर्लियर लेंथ वाइल डिपिंग द स्टोन इन वाटर। जब हम पानी में डुबा देते तो पहले के केस में जो ये जो लेंथ है वो शॉर्टर होगा। वाइल डिपिंग द स्टोन इन वाटर लेंथ ऑफ द स्ट्रेच रबर गेट स्लोली रिड्यूस्ड एंड इज मिनिमम व्हेन इट सिंक कम्प्लीटली। और जब ये इसके अंदर डूब जाएगा तो ये लेंथ एकदम शॉर्टेस्ट हो जाएगा।
व्हाट कुड बी द रीजन फॉर शॉर्टर लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन द वाटर। तो रबर बैंड में का शॉर्ट होने में क्या रीजन है? तो रीजन इज दैट द वाटर अप्लाई द फोर्स of buoyancy on this stone, because of that the weight, actual weight become less। ओके, जो इसके ऊपर अप्लाई होने वाले बाइंड फोर्स की वजह से जो इसके वेट में डिफरेंसेस आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी वजह से ये जो है फर्स्ट केस में यहाँ पे हम लोगों को लाइट इन वेट फील होता है। When stone is sink in the water, a bind force act on it and the upward direction। जब उसको हम डिप करते हैं तो on that buoyant force acts and it is applied on upward direction। The weight of the stone act downward, whereas the weight of a stone act toward downward। Therefore, force which act on it in the downward direction is effectively reduced। और इसकी वजह से फोर्स ऑफ बायोन्सी की वजह से जो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला वेट का फोर्स है दैट रिड्यूसेस। हाउ मच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स। अब मैग्नीट्यूड कितना है, क्वांटिटी कितनी है बाइंड फोर्स की। इज़ द सेम फॉर ऑल द लिक्विड, क्या ये सबके लिए सेम है? तो यार आंसर विल बी नो। इज़ द बाइंड फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, क्या उसके बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है इक्वली? नो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर embodied in Archimedes' principle। The principle states that when object is partially or fully immersed in liquid, a force of buoyancy act on it in upward direction। आर्किमिडीज ने अपना स्टेटमेंट दिया है, इसका प्रिंसिपल बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्शली मतलब थोड़ा, और फुली इमर्स इन द लिक्विड, और पूरी तरह पानी के अंदर इमर्स्ड हो, डूबा हुआ है, ए फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ बायोन्सी एक्ट होता है और उसका डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है, मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स, okay, this force means force of buoyancy is equals to the weight of the fluid displaced by the object। और ये जो है फोर्स ऑफ बायोन्सी, वो जितना वाटर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह से हटाता है, उस वेट के बराबर होता है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द आर्किमिडीज? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शली और फुली immersed in the liquid, a force of buoyancy act on it in the upward direction। This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object। तो ये फोर्स जो है इक्वल होता है वेट में जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ओके, use your brain power, explain the observation in the earlier experiment according in Archimedes' principle। Now, introduction to scientists। Archimedes was a Greek scientist and a mathematician with sharp intelligence। He found out the value of pi by numerical calculation। तो जो आर्किमिडीज वो ग्रीक साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे और वेरी शार्प इंटेलिजेंट थे। ही फाउंड आउट, उन्होंने फाउंड आउट मतलब फाइंड किया, द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू, शहनाज किसकी वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया? पाई की वैल्यू बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। हिज नॉलेज ऑफ लेवर्स पुली wheels in physics was useful to Greek army in fighting against the Roman army। और जो उनका नॉलेज था लीवर का नॉलेज, ओके, लीवर आर यूज्ड इन द लीवर जो होता है ये जो है एक सिंपल मशीन है, ओके, जिसको जैसे पकड़ हो गया, पेयर ऑफ टोंग हो गया, सीजर हो गया,
तो ये सब क्या है, लीवर है। तो हिज नॉलेज ऑफ लीवर और पुली, पुली क्या होगी, दिस इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन, ये भी एक सिंपल मशीन है। ये एक एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। एंड व्हील्स इन फिजिक्स वॉज यूजफुल टू ग्रीक आर्मी इन फाइटिंग अगेंस्ट द रोमन आर्मी। और इनकी ये नॉलेज जो है लीवर की, पुली की और व्हील की, इसका यूज उनकी ग्रीक आर्मी ने रोमन आर्मी से फाइट करने के लिए किया। ही बिकेम फेमस ड्यू टू दिस हिज वर्क इन ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स, उनके इस ज्योमेट्री और मैकेनिक्स के वर्क की वजह से वो फेमस हुए। When he entered a bathtub for taking the bath, he discovered the above principle by observing overflowing water. अब ये जो है, जो इन्होंने ये प्रिंसिपल और स्टेटमेंट दिया कि when an object is partially or fully immersed in a liquid, the force of buoyancy act on upward direction and this force is equals to the weight of the fluid displaced by the object. इसकी जो है उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया जब वो पानी के टब में बात करने के लिए गए। तो क्या देखा उन्होंने कि जो उनका जितना वाटर है उस टब से बाहर आया, उतना ही जो है वेट, फोर्स ऑफ बायोन्सी उनके बॉडी पे वाटर ने अप्लाई किया। He came out in the same state shouting यूरेका यूरेका, मीनिंग आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। और उसके बाद में वो एक चिल्लाते हुए बाहर निकले उस टब से, यूरेका यूरेका, जिसका मीनिंग होता है कि आई फाउंड इट, कि मुझे पता चल गया है। जो उनको फाइंड आउट करना था कि क्या है, कितना कोई लिक्विड जो है सिंक होकर, अगर सिंक होती है तो कितना जो है बाइंड फोर्स अप्लाई होता है, तो उस टाइम उनको ये समझ में आया। द यूज़ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ वेरी वाइड, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो यूज़ है वो बहुत ही वाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स एंड सबमरीन, और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल सबमरीन बनाने के लिए, सबमरीन मीन्स पनडुब्बी, ऐसी शिप होती है जिसको ज़रूरत पड़ने पे हम क्या कर सके, वाटर सरफेस पे ला सके, और अगर हमको दूसरे जो अपोजिशन वाली जो फोर्सेस है उन पे अटैक करना है या उनके सामने हम लोगों को हाइड करना है, तो जब हाइड करने का टाइम आता है तो क्या हो जाता है, वो पानी के अंदर सिंक होकर मूव होता है, सिंक होकर वो चलता है। ऐसे शिप को हम बोलते हैं सबमरीन, हिंदी में बोलते पनडुब्बी। और पनडुब्बी एक क्या है, एक बर्ड्स का नाम है जो क्या करती है, जो पानी के अंदर कुछ टाइम तक डूब करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाती है, अंदर ही अंदर क्या करती है, वो फ्लोट होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके निकलती है। तो सेम वैसे ही ये सबमरीन होते हैं, ये सबमरीन भी एक प्लेस पे सिंक हो जाते हैं और वैनिश हो जाते हैं उस दूसरे जो आर्मी है, जो अपोजिशन वाली आर्मी है, ओके, एनिमी वाली आर्मी है, उसके सामने, आंखों के सामने क्या हो जाते हैं, ये वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पानी के अंदर वो कम्प्लीटली सिंक होकर ही मूव करते हैं, और जब भी नीड पड़ती है तो वाटर सरफेस पे वो आ जाते हैं। तो शिप्स ऑफ सबमरीन बनाने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, और जो इंस्ट्रूमेंट है लेक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर, जो लेक्टोमीटर है, लेक्टोमीटर्स आर यूज टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, मिल्क की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर्स, दिस इज यूजफुल टू find out the density of the liquid, and by finding the density of the liquid we can check out the density of that liquid, and density depends on the purity of that object, okay, तो वो उसके purity के ऊपर डिपेंड करता है। okay, now each and every liquid have the specific density, जो उसके प्योर स्टेट में है उसका एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, and that standard values are available, and using the hygrometer or hydrometer the density of that liquid is found,
जो हाइड्रोमीटर है उसको यूज करके उसकी डेंसिटी फाउंड आउट करते हैं, एंड देन इट इज मैच विद द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच करते हैं. एंड इफ इट्स density is low, means some thin liquids are added, and if its density is high, it means some liquid is added to increase its density और thickness, उसकी thickness को increase करने के लिए ऐड किया है. तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं. ओके, उसके बारे में पता कर सकते हैं हम लोग. Okay student, now see the density of the substance and relative density. अब density क्या है और relative density क्या है, because based on this there are some numerical problem. Density is equals to mass upon volume. Density is equals to mass upon volume. तो ये फॉर्मूला डेंसिटी का, द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Okay, because unit of the volume is cube, because in volume the length, breadth and height is taken, length, breadth, height is multiplied, but in area we multiply length and breadth, but in the finding volume we multiply the three things, length, breadth and height, तीन चीजें multiply करते हैं. तो that's why in volume we find the power on that unit as 3. ओके, तीन उसका हम लोग पावर हम लोगों को मिलता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब. तो दिस इज किलोग्राम, बिकॉज द यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. द प्रॉपर्टी डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस. और ये जो है डेंसिटी एक बहुत ही यूजफुल थिंग्स है प्योरिटी सब्सटेंस की फाइंड आउट करने की. Relative density of substance. The relative density of a substance is expected with respect to the relative density of substance is expressed by checking the ratios of the density of substance to that of density of the water. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. This being a ratio of the two equal physical quantities, it has no units. Now in numerator and denominator, because there is density in denominator and as well as in numerator, so the unit get cancelled. Relative density of substance is called as the specific gravity, and this relative density is also called as the specific gravity. इसको हम specific gravity भी बोलते हैं. Now student, unmute yourself, and if you have any doubt ask to me. This lesson is completed today. I will send the question answer later on. Is anybody having any doubts? Tell me, and inform to your friend to attend the lectures. Yes student, tell me, is anybody having any doubt? Azam, Madiha, Salman, Shehnaz, Umme Habiba. If you have any doubt you can ask to me. You have to reply, you have to participate in study. Okay student, now I am ending the meeting.